নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, এপস্টিন ফাইলের কথা এবার উল্লেখ হলো ভারতবর্ষের সংসদে এবং উল্লেখ করলেন আম আদমি পার্টির নেতা সঞ্জয় সিং, এমপি সঞ্জয় সিং। আপনারা জানেন সবসময় খুব ভোকাল থাকেন সঞ্জয় সিং, এবং সেই সঞ্জয় সিং এই মুহূর্তে বলছেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তার নাম এপস্টিন ফাইলে এলো কিভাবে। 2017 সালের তথ্য অনুযায়ী এপস্টিন ফাইলে নরেন্দ্র মোদী তার নাম পর্যন্ত এসেছে, এবং ইসরায়েল ট্যুরে তখন ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় কার কোনো একটা কথা উল্লেখ করে একদম সরাসরি নরেন্দ্র মোদীর নাম এপস্টিন ফাইলে উল্লেখিত হয়েছে, এবং সেটা নিয়ে সংসদের অভ্যন্তরে যখন সঞ্জয় সিং প্রশ্ন তোলেন, তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ট্রেড ডিলটা ঠিক তার পরেই হয়ে গেল কিভাবে, যখন এপস্টিন ফাইলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নামটা এলো। এটা সম্বন্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন কোনো ক্লারিফিকেশন দেবে না, এটা বলতেই উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদ। এবং অবশ্যই এপস্টিন ফাইলের যে নাম সেটা রেকর্ডে যাবে না, কারণ সেই সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে স্পিকার যিনি ছিলেন রাজ্যসভায়, তিনি বক্তব্য রাখেন, এবং অন্যদিকে একদম বিজেপির পক্ষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এমপিরা বিরোধ করতে শুরু করেন, এবং তার পরবর্তী নাম করেও একদম সরাসরি তারা এই সামগ্রিক বিষয়টা নিয়ে ক্লারিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশ্যই ভারতবর্ষের সংসদে এপস্টিন ফাইল সেটার কথা উল্লেখিত হচ্ছে, এটা অবশ্যই বড় একটা বক্তব্য। এবং অবশ্যই সঞ্জয় সিং সবসময় ভোকাল থাকা সাংসদ, তিনি এই মুহূর্তে সরাসরি বক্তব্য রেখেছেন যে শঙ্করাচার্য, উত্তরপ্রদেশের যে শঙ্করাচার্য, আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন সঞ্জয় সিং নিজে, এবং সেই শঙ্করাচার্যকে যে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যোগী সরকারের পক্ষ থেকে যে আপনি আদপে শঙ্করাচার্য কিনা, সেই সম্বন্ধেও সংসদে একই বক্তব্য রাখার মধ্যে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। এবং ট্রেড ডিল, ভারতবর্ষ আমেরিকার ট্রেড ডিল নিয়েও বক্তব্য রেখেছেন, দীর্ঘায়িত বক্তব্য, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে কিসের ভিত্তিতে ট্রেড ডিলটা হলো, কেন আমেরিকা 18% ট্যারিফ নেবে, যেখানে আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে আমেরিকার যে ব্যবসা করার সম্পর্ক, সেখানে 1 থেকে 3% পর্যন্ত ট্যারিফ দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে সেটা কেন 18% নেওয়া হবে, এবং সেখানে কেন নরেন্দ্র মোদী রাজি হলেন। নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে কেন এই মুহূর্তে রাজি হলেন যে আমরা রাশিয়ার থেকে তেল কিনবো না, ইরানের থেকে তেল কিনবো না, এই বিষয়গুলোতে কেন রাজি হলেন, এবং রাজি হয়ে কেন ট্রেড ডিলটা করলেন, এবং তার পেছনে কি কোথাও গিয়ে এপস্টিন ফাইল সেটা কাজ করছে। এপস্টিন ফাইলের নাম থাকা অবশ্যই দেশের জন্য নিন্দনীয়, এবং সেটা এই মুহূর্তে প্রশ্ন তুলেছিলেন সঞ্জয় সিং। আপনারা দেখুন নিজেই কি কি প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় সিং, এবং তার উত্তরে বিজেপি নেতা মন্ত্রীরা তারা কি বক্তব্য রাখলেন। অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট ছাড়তে ভুলবেন না। এই সামগ্রিক ঘটনা সম্বন্ধে আপনাদের মতামত দেখার অপেক্ষায় রইলাম। দেখতে এখন টক টু বাংলা, অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। ধন্যবাদ। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका ये चीज नोट नहीं किया जाएगा। काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया मान्यवर, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। आपकी पार्टी के नेता और केंद्र राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। आप उन पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। आप ऐसा शब्द मत बोलिए। जिन लोगों ने तोड़ा मान्यवर, जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, उन गुनहगारों को मैं चाहता हूं, चलिए गुनहगार कह देता हूं, भाषा शैली में चलिए मान्यवर गुनहगार संयम के साथ साथ उन गुनहगारों को जिन्होंने उस पुरातन पवित्र मणिकर्णिका घाट को तोड़ा,
माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा, कार्रवाई उन पे करने के बजाय आपने मुझ पर एफआईआर कर ली। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, अगर आपने कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं की है, 3 सदस्यों का, और तीनों बीजेपी के रहे, मैं तो कह रहा हूं 3 के तीनों बीजेपी के लेके जाइए आप, 3 सदस्य भेजिए बीजेपी के संसदीय दल के, और वहां पर दिखाइए कि माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है, वहां दिखाइए मणिकर्णिका घाट को नहीं तोड़ा गया है, और फिर जो कार्रवाई आप मेरे ऊपर करना चाहें कीजिए। आपने काशी को बर्बाद करने का एक मन बना लिया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने सैकड़ों मंदिर वहां पे तोड़ दिए, वहां पे शिवलिंग लंका थाने में पड़े हुए हैं। यह घटना अगर किसी विपक्ष के राज्य में हुई होती, आप पूरे देश में हंगामा कर देते, फसाद करा देते पूरे देश में, लेकिन आपने वहां मंदिरों को तोड़ा, पवित्र घाटों को तोड़ा। 54 देश के नागरिक आते हैं काशी में मान्यवर, वो वहां पे बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो वहां पे आते हैं वहां के पुरातन मंदिरों को देखने के लिए, वो वहां पे आते हैं पुरातन घाटों को देखने के लिए, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए, वो इसलिए आते हैं काशी की गलियों को देखने के लिए। आप वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई मान्यवर, बहुत ही दुखद घटना हुई। शंकराचार्य जी परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, उनको प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, उनके शिष्यों को, उनके बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया उनको। और इतना ही नहीं, उनकी एक मांग थी कि अगर प्रशासन या सरकार मुझसे वार्ता कर ले और अपनी गलती मान ले तो मैं स्नान करूंगा। ना उनसे किसी ने माफी मांगी और ना ही वो स्नान कर पाए। बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वहां से चले गए। और भी शर्मनाक बात यह है, आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। आप देखिए कि आप शंकराचार्य जी को तहसीलदार के माध्यम से चिट्ठी भेज रहे हैं, कह रहे हैं बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अरावली पर्वत को साबित करना है, बताओ तुम अरावली पर्वत हो कि नहीं हो। दिल्ली की जहरीली हवाओं को साबित करना है, बताओ हवाओं तुम जहरीली हो कि नहीं हो। इस देश के मतदाताओं को साबित करना है, बताओ तुम भारत के नागरिक हो कि नहीं हो। और शंकराचार्य जी को साबित करना है, बताओ आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो लोग अभी तक 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। यह है आपकी धार्मिक ठेकेदारी। इस तरह से आप धर्म की ठेकेदारी करना चाहते हैं। 1 मिनट में फाइल का जिक्र हुआ, एक विकृत यौन मानसिकता के सजाए याफ्ता अपराधी का जिक्र इस संसद के पावन पटल के ऊपर करना इनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। सर, एक बात फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, अमंग द मिलियंस ऑफ ईमेल्स देयर इज नो डायरेक्ट ईमेल विद प्राइम मिनिस्टर। सर, नो डायरेक्ट मैसेज, नो डायरेक्ट फोन कॉल। मैंने पहले कहा है कि अगर कोई चीज तथ्य के परत नहीं है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं सर, मैं अपनी बात बस 2 वाक्यों में समाप्त करना चाहता हूं। ना कोई ईमेल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई फोन कॉल है, और उसके बाद निराधार अनलगर आरोप के ऊपर एक सजाए याफ्ता अपराधी का नाम लेकर यहां पे बोलना यह बहुत ही निंदनीय है और इनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और सर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यह कहा है कि वो फॉल्स और सेंसेशनल आरोप है। और प्रधानमंत्री जी इजराइल में अपनी ऑफिशियल यात्रा पे थे, एक मुलाकात ऑफिशियल है, और उसके बावजूद वहां पर सिर्फ एक ही गायन हुआ, वो था राष्ट्रगान। अगर उसमें नाच गाना इनको नजर आता है, हो सकता है इसे राम मंदिर में नजर आता हो। तो मैं इस पे घोर भर्त्सना करते हुए सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं, सभापति महोदय सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद के महामेरु पर वार बहुत ही हल्का है, भारत विकसित रोकने के लिए यह मचा हुआ तहलका है। नहीं, देखो जो माननीय सदस्य ने जो तथ्य के विपरीत और संविधान के विपरीत बात कही, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जवाब सवाल नहीं है, आपकी बात आ गई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपने कि जो भी आरोप लगाए हैं उसका जवाब दिया जाए, नहीं होगा, उसको डिनाई करें। आप भागते क्यों हैं? नहीं, आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते।